بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو، نمستے، ست شری اکال، السلام علیکم جناب۔ آپ سبھی کے سبھی بہت اچھے ہوں گے۔ سو گائز، آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آ چکے ہیں آپ سب کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ بتائیں گے شیوم۔ حضرت عمر کا دور خلافت، حضرت عمر R.A، اس کا مطلب اسے راضی ایسے کچھ نام ہے، بٹ مجھے وہ بھی پرناؤنس کرنا نہیں آ رہا ہے۔ آپ بتانا کمنٹ کر کے حضرت عمر نہیں، مجھے بتایا ہوا ہے لیکن مجھے ابھی میرے کو بتا دینا، اس کو بتایا نا، میرے کو بتایا مجھے نہیں اس چیز کا پرناؤنسیشن نہیں کرنا۔ فرسٹ ورڈ تو راضی اللہ تعالیٰ کر کے ایسے نا، آئی تھنک یہی ورڈ ہے۔ سو آپ بتانا کمنٹ کر کے۔ ہاں جی، باقی ابھی ہم چلتے ہیں رضا ثاقب مصطفی جی کا رضا۔ ہاں رضا، میں نے بھی کہا تھا کسی نے، پر میں ان کو رضا بولتا ہوں، آپ رضا سمجھ لیا کرنا۔ باقی دونوں کے جو انسٹاگرام کے لنک ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں ہے، وہاں جا کے مجھے فالو کریں، انہیں نہ کریں۔ صحیح بولنا، انسٹاگرام پہ لنک دیو ہے، صحیح بولنا ڈسکرپشن نہیں لیکن آپ بھی دیے ہوئے ہیں، میرے کو پتا ہے نا، کوئی محنت ہی نہیں ہے، بٹ وہاں جا کے آپ نے فالو مجھے کرنا ہے، میرے والا مجھے چینل کرنا آپ جا ہے۔ کے دیکھ سکو، وہاں جا کے دیکھو کہ انسٹاگرام کے لنک بھی ہیں، سارے چینلوں کے لنک آتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا خالی ہو نا @ کر کے پہلے کھانے میں۔ سو فی الحال دونوں کو فالو کرنا ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میرے کو زیادہ فی الحال اسٹارٹ کرتے ہیں یہ والا حضرت عمر کا۔ اچھا حضرت عمر کیا تھے، مطلب نبی تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ صحابی تھے، پتہ نہیں، میرے کو آپ کمنٹ کر کے بتاؤ۔ کئی کمنٹ آتے ہیں کہ نبی تھے، یہ کہتے ہیں کہ صحابی تھے، اور ان صحابی کیا ہوتے ہیں میرے کو یہ بھی کمنٹ کر کے بتانا، میرے کو پتہ نہیں ہے۔ سو فی الحال اسٹارٹ کرتے ہیں، کریں اسٹارٹ؟ ہاں جی۔ نیو اسلامک بیان، اور یہ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں جا کے چیک آؤٹ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کی پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں، اسے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بےتاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔
हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत के अंदर जो जाहो जलाल था, तबीयत के अंदर जो सख्ती थी, वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम रही। और आपने वही सख्ती, वही जाहो जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था, अब कुफ्फार के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ हजरत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश खरोश बदस्तूर मौजूद है। लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मिंबर पर चढ़ के जो खुतबा दिया, उसमें कहा, लोगों मैं सख्त इसलिए था कि रसूलुल्लाह नरम थे, फिर मैं सख्त इसलिए था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नरम थे, अब मैं तख्त खिलाफत पे बैठा हूँ, अब मेरी सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो गई। सिर्फ फासिकों, फाजिरों और बागियों के लिए मैं सख्त हूँ, बाकी तुम्हारे लिए नरम। सबसे कम जो तनख्वाह बैतुल माल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 जोड़े लेते थे साल में, और रावी कहता है कि मैंने देखा है कि उसमें भी 17 पैबंद लगे होते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज ज़िंदगी, आपका अंदाज़ मुआशरत और आपका अंदाज़ खिलाफत, हर लम्हा आपकी ज़िंदगी का उठा के देखिए कितनी मर्तबा कुरान हजरत उमर की राय के मुताबिक नाज़िल। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको साहिब इल्हाम बनाया था। हर उम्मत में कोई साहिब इल्हाम होता है, हुजूर की उम्मत का साहिब इल्हाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, और आका करीम ने उन्हें अपना वजीर करार दिया। फरमाया, मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीनों में हैं। आसमानों के वजीर जिब्राइल और मिकाइल हैं, और जमीन के वजीर अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा, हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है, तो मैं डरता हूँ कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह, पूरा प्रॉपर्ली सुनेंगे ना। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने सही बोला है, रज़ी अल्लाह ताला, ताले आगे अल्लाह ताला बाकी आगे नहीं है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ताला आगे एक और वर्ड है, रज़ी अल्लाह ताला आगे एक और वर्ड है, वो थोड़ा प्रॉपर समझ नहीं आ रहा। टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहाँ से चले और यहाँ मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहाँ तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी, और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दोशीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज के टुकड़े पे लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं। और कासिद को कहा, ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो।
कासिद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। क्या बात है। दरिया हुक्म मानते, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे दुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है? तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत, उसकी बरक़ात का नुज़ूल होता था और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है, तो मुस्करा के कहते हैं हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहाँ है तुम्हारा अमीर? कहा मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल की ऊँटों की देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है, अल्लाह अकबर, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए हुए। तो उसने कहा उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह उन उमूर सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की जरूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी जरूरियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते। रातों की तन्हाइयों के अंदर हजरत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पुरनम न हो, मुफलसी का किसी घर में मातम न हो। सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो हजरत उमर पे थी, है ना। तो बहुत ही ज्यादा वो अच्छे थे, मतलब उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है ना, कि वो किसी की आंखों में आंसू नहीं देखते थे या किसी कोई भी अपने कर्म सही करते थे वो ना। जिस रास्ते पे वो चलते थे उस रास्ते से शैतान जो है भाग जाता था। तो ये थे हजरत उमर, उनके बारे में ये अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिली है। और फ्रॉम रजा साकिब मुस्तफा जी। सो तू देखना चाह रही थी कि राजा तुम्हें बोलते हैं रजा साकिब। सो बाकी और भी अगर इनकी ऐसी वीडियोस होंगी हजरत उमर की, बहुत लोग इनके बारे में सुनना, बहुत लोग इनके बारे में सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि हमने एक या दो वीडियोस पहले भी करी है ना हजरत उमर जी की। सो उनके ऊपर, हजरत उमर के ऊपर सो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। सो इस वीडियो पे उम्मीद तो यही है कि इतना सारा प्यार मिलेगा। और एक बात और कहनी थी कि 50K पे जैसे मैंने और नेहा ने अनाउंसमेंट किया कि लाइव आएंगे, तो कोशिश करेंगे कि लाइव आए। कोशिश क्या करेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स रहता है, प्यार करते हो, तो 50K पे हम लाइव आ रहे हैं। बस 1700 सब्सक्राइबर रह गए और डर भी लग रहा है मेरे को बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक तो लाइव आ रहे हैं और आप सबसे बातें होंगी, पता नहीं क्या होएगा। बाकी टाइम और शेड्यूल हम बता देंगे आपको, जब लाइव आना होगा उससे एक दिन पहले बता देंगे कि कल इतने बजे लाइव आएंगे। थोड़ा टाइम आप निकालिएगा ताकि हमसे बातें कर सकें। टाइम आप बताओगे, हम वो डालेंगे ना, क्या बोलते हैं, पोल डालेंगे ना यूट्यूब पे। आप बताओगे किस टाइम करना है, उसमें टाइम डाल दूंगा, फिर आप बता देना, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट पोस्ट डाल दूंगा कि इस टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है। सो बाकी ये वीडियो को लास्ट तक देखा हो, जिसने यहाँ तक देखी उसको लाइव वाली बात भी पता चल गई होगी, वो भी हमें कमेंट करके बताना कि लास्ट तक किसने देखी है। बाकी फिलहाल इस वीडियो पे इतना था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।